This session is being recorded, and this is Sir Sibu Rahman, your English language and IELTS instructor. And in today's class, I am focusing on a very important topic that is considered the most important topic in my life. And I usually call it an introductory lecture of English language. But before I start today's session, I must tell you, I must update you that if you really want to improve your English, step step one, improve your pronunciations. If you are appearing in IELTS, if you are learning language for your personal use, for your academic life, for professional life, your pronunciation really matters. The way you speak sounds really, really good if you pronounce every word clearly. So you need to work on it. And in IELTS speaking, you will get additional marks if you pronounce words clearly. And if you don't pronounce words clearly, if you mispronounce, if you chew your words, there will be deductions in your IELTS speaking test. And whether you are just a language learner, you are an English teacher. So what is very important? What is very important? The way you speak, the way you pronounce words. And for this, you have a class. We also provide you pronunciation class Monday, Wednesday, and Friday, 5 to 6 and 10 to 11. You can take a screenshot of this schedule if you are my language student, so you can avail this session. And luckily, you also have a vocabulary session. Step two. Step two is syntax. Look here. Step two. Sir, I want to improve my language. Step one, sound. Step two, syntax, जिसके बारे में आज मैं बात करूंगा. और अगले 4-6 सेशंस जो मेरे आ रहे हैं, they all are gonna be on syntax. Grammar, I am gonna teach you. Obviously, I conduct your grammar classes, so I'm not gonna discuss in today's session. Vocabulary, vocabulary is the key. I call vocabulary bullets. आप 2 गोलियां आपके पास है, चला दीजिए, खत्म. You need more bullets. So vocabularies are like bullets. You need to learn vocabulary every day. Join me twice in a week for 30 minutes only, if you are available. If you are not available, watch my recorded session. And I conduct live session on vocabulary on Monday and Wednesday in the morning. And I conducted very first lecture today on public demand, and I shared the recording as well. And I also have shared a book on vocabulary. And from tomorrow onwards, you will have a live session of vocabulary. You will be learning 10 to 15 vocabulary twice in a week. Right? And then listening and speaking. Join your discussion classes, join your spoken classes where you listen and where you speak. These 2 sessions you will find. Sir, I want to improve my writing. मेरे पास एक message आया था. Sir, I want to appear in proficiency test. I want to improve my writing. Writing is the last component of language learning. आपने ग्राउंड फ्लोर बनाया नहीं, फाउंडेशन आपको आती नहीं, बेसिक्स आपकी अच्छी नहीं है, ये ग्राउंड फाउंडेशन है. जमीन के अंदर बहुत सारी चीजें होती है ना. जब तक आपकी खुदाई करके अच्छे पिलर्स नहीं पड़ेंगे, तो आपकी बेटा कभी लैंग्वेज स्ट्रांग नहीं होगी. सो फाउंडेशन लेवल अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका. फिर उसके बाद आप आगे चलते हैं. यू इम्प्रूव योर लिसनिंग. When you take spoken classes and discussion classes, you improve your listening. What you are doing right now, you are listening. And you know, the key to speaking is listening. Listening is the key to speaking English. If you become a good listener, you will become a good speaker. What I have observed that IELTS participants usually get good score in listening if they are taking online classes, because automatically they improve their listening because they keep on listening. They focus a lot.
Your focus is very important in listening. So listening is the key. If you want to become a good speaker, start listening. Sir, I want to write an essay. I want to write a letter. Sir, I want to write a report. आइल्स के अगर पार्टिसिपेंट्स हैं वो राइटिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं तो बेटा रीडिंग स्टार्ट करो ना, मुझसे कलेक्ट करो आप। सर मुझे मटेरियल दे, मैं रीड करूंगी। मैं हकीकत बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू द रियलिटी एंड यू विल बी सरप्राइज्ड। एक आइल्स का स्टूडेंट जो ऐसे लिखने की कोशिश करता है उसने जिंदगी में कभी ऐसे रीड नहीं किया। यू कैन नेवर राइट एन essay if you have never read an essay. So for writing an essay, for writing a letter, for writing a report, you must start reading it first. आपने जिस दिन 100 ऐसे रीड कर लिए, आप एक ऐसे बहुत अच्छा लिख लेंगे। लेकिन उसके लिए आपके पास आपकी ये प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए, टेंसेस, मॉडल्स, कंडीशनल्स। और वो आप कहाँ से सीखते हैं? जब आप एक लैंग्वेज लर्नर होते हैं, आप अपनी लिसनिंग स्पीकिंग पे काम करते हैं, आपके स्पीकिंग स्किल्स डेवलप हो जाते हैं, फिर आप अपनी रीडिंग स्किल्स पे काम कर रहे होते हैं। रीडिंग स्किल्स जब आप बार बार रीड करते हैं तो आपको समझ आता है लिखा कैसे जाता है, आपकी वोकैबुलरी एक्सप्लोर होती है, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर एक्सप्लोर होता है, आपके आइडियाज एक्सप्लोर होते हैं रीडिंग से। कोई टीचर आपको राइटिंग नहीं सिखा सकता जब तक आप एक अच्छे रीडर ना बने। तो जो आइल्स के पार्टिसिपेंट्स हैं वो मुझसे कलेक्ट करें, सर प्लीज प्रोवाइड अस समथिंग टू रीड। और क्या रीड करें? जो आपको लिखना है। ठीक है, तो रीडिंग के लिए सबसे पहले, राइटिंग के लिए सबसे पहले आपको ये सेलेक्ट करना होता है व्हाट टू राइट। आपको लिखना क्या है? सर मुझे CSS के ऐसे लिखने। तो जाओ बेटा CSS के 2500, 200 500 वर्ड्स का, 2500 वर्ड्स का जाके ऐसे पहले रीड तो करो, देखो तो लिखा कैसे जाता है। 100 ऐसे तो पढ़ो। तुमने जिस दिन 100 ऐसे रीड कर लिए, तुम अपना एक ऐसे लिख लो। लेकिन बच्चा परेशान होता है, मैं क्या लिखूं, मैं कैसे लिखूं? यू नीड टू रीड फर्स्ट, यू नीड टू लिसन फर्स्ट टू स्टार्ट स्पीकिंग एज यू हैव बीन लिसनिंग। ठीक है, चल स्टेप्स पता चल गए आपको। स्पीकिंग और लिसनिंग का बहुत मौका मिलता है 1-to-1 डिस्कशन में। आपके पास टाइम कम है और आप ज्यादा से ज्यादा बोलना चाहते हैं, तो ये जो 1-to-1 डिस्कशन सेशंस होते हैं, इसमें आपको अगर 1 घंटा मिल रहा है, सो इन 1 hour you will have only 2-3 participants with you and you will be talking a lot with other participants. ये रहा 1-to-1 डिस्कशन। एक कल पूरे दिन में 3 मरतबा 1-to-1 डिस्कशन सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं, सुबह में 12 से 12:30, शाम में 5 से 6, रात में 10 से 11। तो आप अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से इन टाइमिंग्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको टाइमिंग्स याद रहे। अब आ जाए, सर डू यू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स? आई ऑलवेज स्टार्ट टीचिंग फ्रॉम बेसिक्स। आज मेरा पहला ही लेक्चर है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। मैं लेटर से स्टार्ट ले रहा हूँ, इससे पहले फिर मुझे कायदा पढ़ाना पड़ेगा। ए फॉर एप्पल। अगर इतने नीचे मुझे जाना है तो सॉरी, मैं आपको एक मॉन्टेसरी की टीचर दे देता हूँ। लेटर्स, लेटर्स 2 तरह के होते हैं, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर। उसके अंदर भी 2 वैरायटीज होती हैं, वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। अपना वाउल्स का तलफ्फुज सही कर लीजिए। आप लोग कहते हैं वोवेल्स, हम कहते हैं वाउल्स। वाउल्स, वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। फिर जब हम लेटर्स को जोड़ते हैं बेटा, तो हमारे पास आता है वर्ड। अब हमें आज तक ये पता ही नहीं था कि वर्ड भी 2 तरह के होते हैं। यू हैव बीन लर्निंग कंटेंट वर्ड सिंस योर स्कूल लाइफ। आप अपनी स्कूल लाइफ से लेकर अब तक आपने कंटेंट वर्ड्स को याद किया है। और कंटेंट वर्ड्स को मैं दूसरे अल्फाजों में ये भी कह दूं कि जो कंटेंट वर्ड्स हैं वो आपकी बेसिकली पता है क्या है? वो आपकी वोकैबुलरी है। कंटेंट वर्ड्स वोकैबुलरी है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, आपको बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, यकीन नहीं आ रहा। मैं देखिए अगर एक लिस्ट अभी आपसे शेयर करता हूँ, उसमें 1000 वर्ड्स होंगे। यू ऑलरेडी हैव दिस इन योर मेमोरी। 1000 मोस्ट कॉमन वर्ड्स। देखिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर। आप नहीं जानते कि आपको कितना आता है। यू रियली नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट द थिंग इज दैट इन चीजों का कोई फायदा नहीं। वजह बताऊंगा।
ये आपके पास देखें 1000 वर्ड्स आप कॉमनली यूज वर्ड्स है। मैंने आज आपको वोकैबुलरी की बुक शेयर की, उसके अंदर ये मौजूद है। आप गौर से देखिए, जब आपको टाइम मिले तो आप इसको देखिएगा। आप कहेंगे आई नो द मीनिंग ऑफ एवरी सिंगल वर्ड, सर दीज आर द कॉमन वर्ड्स। आप वेरीफाई कर लीजिएगा, यू नो एवरी वर्ड। आप देख लें, टीच, टेल, देन, देम, दीज, दिस, थ्रेट, दस, टुनाइट, टुवर्ड्स, ट्रेवल, कौन सा ऐसा वर्ड है जो तुम्हें नहीं आता भाई? देखिए, ये लिस्ट आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। कहाँ पर? तो आज वोकैबुलरी बुक सेंड की, उसमें चेक कीजिएगा। कॉमनली आपको ये कंटेंट वर्ड्स, कंटेंट वर्ड्स की नॉलेज आपके पास है, बट दे आर ऑफ नो यूज। उनका कोई फायदा नहीं है बेटा, until you have proper knowledge of structural words. Structural words are very, very important in our life. Without structural words, you cannot write a sentence. You cannot create a sentence, a logical sentence. You cannot. You can never. I teach English. Sir, इसमें तो कोई content words, structural words नहीं आया. Beta, when you speak English, when you speak English in a full swing, when you write a paragraph, you cannot write it without articles, without prepositions, without conjunctions. These are small words which connect your ideas. ये वो छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो आपके आइडियाज को जोड़ते हैं, और आप यहाँ बहुत गलतियां करते हैं। आपकी राइटिंग में और आपकी स्पीकिंग में सबसे ज्यादा मार्क्स जो कटते हैं वो यहीं पर कटते हैं। आपकी राइटिंग में तो फिर आप लोग जब कुछ लिखते हैं तो आपकी राइटिंग में रिफ्लेक्शंस आ जाती हैं, नजर आ जाता है हमारे पास कि ये गलतियां हैं। स्पोकन में आपको लगता है कि आपकी गलतियां छुप जाती हैं, लेकिन अगर आप आइल्स स्पीकिंग की बात करते हैं, आइल्स स्पीकिंग में आपकी स्पीकिंग को रिकॉर्ड किया जाता है, उसकी ट्रांसक्रिप्ट बनती है कि आपने क्या बोला, और फिर आपकी स्पीकिंग में आर्टिकल्स की, प्रपोजिशंस की, कंजंक्शंस की गलतियों की पर आपके मार्क्स सबसे ज्यादा काटे जाते हैं। Prepositional mistakes are not acceptable. Conjunctional mistakes are not acceptable. Articles mistakes are acceptable. आप कोई सा भी देखें, एक सेंटेंस लिखें, आपको उसमें लाजमी तौर पर आर्टिकल्स, प्रपोजिशन और कंजंक्शंस नजर आएंगे। मैं कोशिश करता हूं कि आपके सामने एक लाइव एंड एक्सक्लूसिव एक पैराग्राफ आपसे शेयर करता हूं, और उसमें आप आइडेंटिफाई कीजिएगा। मैं एक बहुत आसान सा, सिंपल सा क्लास 5 के लेवल का एक पैराग्राफ आपके सामने शेयर करूंगा, और आप देखिएगा कि whether it is possible to write a paragraph without any support or help of articles, prepositions, or conjunctions. I'm just sharing on your screen. Wait for a while. ये लीजिए, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। अगर आपने अब तक अपनी जिंदगी में चैट जीपीटी का इस्तेमाल नहीं किया है, तो आप इसको अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आप जहां पर स्टक हो जाएं, इफ यू गेट स्टक एनीवेयर, सो आप लाजमी तौर पे वो सवाल चैट जीपीटी से जाकर पूछें। जैसे हम पहले गूगल से पूछते थे, आज हम वही सवाल चैट जीपीटी से पूछते हैं। सो चैट जीपीटी विल आंसर योर ऑल क्वेश्चंस। They may not be correct, but you can verify with other sources as well, right? जब तक ये आ रहा है, मैं आपसे एक और पैराग्राफ शेयर कर देता हूँ। I already have it here. ये लीजिए, आप इसको रीड करेंगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि सर इज एब्सोल्युटली राइट। आई वेक अप एट 7 a.m. every day and begin my morning routine by brushing my teeth and washing my face for
breakfast, I usually opt for oatmeal accompanied by a of at I leave for work, taking the bus to the office. The work starts at in and throughout the during the a sandwich or in the with to and ये वर्ड्स जो है ना, आप लोग कभी जिंदगी में आपको ना किसी ने कहा कि इन वर्ड्स को फोकस करो। मैं अपने पहले लेक्चर में यही बात समझाता हूं कि सबसे ज्यादा गलतियां, सबसे ज्यादा मार्क्स आपके जो डिडक्ट होते हैं इन गलतियों के होते हैं। आप लोग टेंसेस, मॉडल्स, कंडीशनल्स, पैसिव पढ़ने के बावजूद भी ये गलतियां कर रहे होते हैं, और इन गलतियों पे जो मार्क्स कटते हैं ना वो कहीं ज्यादा होते हैं। आपने एक टेंस की मिस्टेक कर दी, इतने मार्क्स नहीं कटेंगे। अगर आपने एक गलत प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया, आपके मार्क्स ज्यादा कटेंगे। अब आप देखेंगे कितना छोटा सा पैराग्राफ है और उसमें जो वर्ड्स आपको इस्तेमाल करने हैं। अब आप सोचें, आपको राइटिंग के अंदर 250 वर्ड्स लिखने आइल्स ऐसे के अंदर, आइल्स ऐसे राइटिंग 250 300 वर्ड्स लिख लें, कितने ये वर्ड्स होंगे जो आप इस्तेमाल करेंगे। आपके आइडियाज तो बहुत थोड़े से होते हैं, सबसे ज्यादा वर्ड्स ये होते हैं। आप खुद इन वर्ड्स को काउंट करें, वर्ड काउंट करने के बाद आप इन वर्ड्स को काउंट कीजिएगा तो आपके पास 30% वर्ड्स यही होते हैं। आर्टिकल्स, preposition, conjunctions. Try to understand the importance of these three things: articles, preposition, conjunctions. आप ये हटा दीजिए, अब आपकी इंग्लिश बर्बाद हो गई है। आप सवाल करते हैं ना, अक्सर बच्चे आइल्स के पार्टिसिपेंट्स मुझसे सवाल करते हैं, व्हाई डोंट वी गेट 7+ बैंड्स। आप में से हो सकता है कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी स्पोकन इंग्लिश में एनरोल्ड हो और आने वाले वक्तों में आइल्स करना चाह रहा हो। तो बेटा, मैं जिस तरह से स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करवाता हूँ, आप कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे दो, तुम्हारी राइटिंग में तुम्हारी परेशानी नहीं होगी। लेकिन सर की बातों को फॉलो करो। सिटी स्कूल का टेस्ट देना है, 3 महीने का स्पोकन इंग्लिश का कोर्स मुकम्मल कर लो, दे दोगे। तुम्हें ड्यूलिंगो देना है, तुम्हें पीटीई देना है, तुम्हें आईएलटीएस देना है, तुम्हें ओईटी देना है, तुम्हें पीटीई देना है, कोई सा भी टेस्ट देना है, अपने लैंग्वेज स्किल्स को इंप्रूव करो। When you are good at language skills, it means that you are good at writing. It means you are good at speaking. What else do you want? Vocabulary we provide you, pronunciation sessions we provide you. आपकी speaking improve हो रही है, आपकी vocabulary improve हो रही है, आपका sentence structure improve हो रहा है। भाई, इसी चीज का तो इम्तिहान देते हैं हम लोग। यही तो इम्तिहान होता है कि आपके लैंग्वेज स्किल्स को टेस्ट किया जाए। अब लैंग्वेज कोर्स किया नहीं है और आप चाहते हैं कि बस आपका आप ये स्किल का टेस्ट पास कर लें, बेकार है मेहनत। इट्स नो यूज वर्किंग हार्ड ऑन एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम अंटिल यू आर गुड एट लैंग्वेज। आ गई बात समझ? ठीक है बेटा, चले आगे चलते हैं, वापस आते हैं। अब मसला तो बता दिया, कोई सॉल्यूशन भी दे दें। मसला क्या बताया सर ने आपको कि आपकी प्रॉब्लम आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस और कंजंक्शंस है। आज के सेशन के फौरन बाद आपके पास जो है वो कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे, सपोर्टिंग लेक्चर्स जिनको मैं कहता हूँ। आप इन 3 टॉपिक्स के ऊपर आपको 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूं और सपोर्टिंग लेक्चर्स पे आपको काम करना है। आर्टिकल्स, prepositions, conjunctions। ठीक है, गॉट इट? इसमें पीडीएफ भी होगी, टेस्ट भी होगा और लेक्चर भी होगा। पहले लेक्चर को सुने, पीडीएफ को पढ़ें और फिर संडे को टेस्ट दीजिए। ठीक है, चलिए अब आ जाइए। अब हम वर्ड्स, हमने शुरू किया लेटर से, लेटर से हमारे पास वर्ड्स आए। अब आज हमें पता चला है
कि बेटा वर्ड लेवल पे भी हमारी नॉलेज कमजोर है, हमें 3 वर्ड्स के ऊपर काम करना है, आर्टिकल्स पर, प्रपोजिशंस पे, कंजंक्शंस पर। सर हमें सपोर्टिंग लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। अब हम वर्ड्स को जोड़ने जा रहे हैं। वो लोग हैंड रेस कर लीजिएगा जो मेरे साथ सेशन में एक्टिवली इन्वॉल्व है और मेरी सवालात के जवाब देंगे। राइट, प्लीज रेज योर हैंड बिकॉज आई लव टू टेक इंटरेक्टिव सेशंस। यहाँ से आज का हमारा सही मानों में सेशन शुरू होने जा रहे हैं। हम वर्ड्स को कंबाइन करने जा रहे हैं, हम वर्ड्स को जोड़ने जा रहे हैं। बताइए अमीना, मैं जिसका नाम लूं वो अपना माइक खुद ऑन कर ले तो ज्यादा अच्छा होता है, डिसिप्लिन रहता है क्लास में। अमीना मुझे बताइए, आई वॉन्ट टू कंबाइन वर्ड्स। जब मैं वर्ड्स को कंबाइन करूंगा तो सबसे पहली चीज मेरे पास क्या बनकर आएगी? हिफ्जा, बताइए। आमना बता रही है। हैंड रेस किया करें ताकि आप हैंड रेस करें तो मैं आपका प्रॉपर नेम लूं। देन प्लीज, दीज आर द डिसिप्लिन, दिस इज द डिसिप्लिन एंड दीज आर द एथिक्स ऑफ माय क्लास। और अपना प्रॉपर नेम मेंशन किया करें जब सेशन में आया करें। लेकिन बस हमारे कुछ लोग हैं वो आदत से मजबूर हैं, तो हम आपका माइक खुद ऑन कर देंगे। हिफ्जा बेटा बताइए, कुछ वर्ड्स को हमने कंबाइन कर दिया, क्या बनेगा? सबसे पहले हमारे पास, हम वर्ड्स को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? सेंटेंस। सेंटेंस बनता है। यही बात हमने स्कूल में सिखाई गई थी। दैट्स वेरी गुड। यस तैयबा बताइए। सर जब हम वर्ड्स को जोड़ते हैं तो फ्रेज और क्लोज मिलकर बनते हैं, देन फ्रेज और क्लोज मिलाकर सेंटेंस बनते हैं। फ्रेज और क्लॉज मिला दें तो सेंटेंस बन जाता है। वर्ड्स को मिलाते हैं तो फ्रेज बनता है, वर्ड्स को कंबाइन करते हैं तो क्लॉज बनता है, वर्ड्स को जोड़ते हैं तो तो सेंटेंस क्लोज बनता है, और सेंटेंस को जोड़ते हैं तो मुमकिन है क्लॉज बन जाए, पैराग्राफ। मुमकिन है पैराग्राफ बन जाए। पैराग्राफ बनेगा, पैराग्राफ लिखना आएगा तो आइल्स का एस्से लिखा जाएगा, रिपोर्ट लिखी जाएगी, लेटर लिखा जाएगा। यानी कि सबसे पहले हमें काम करना है फ्रेज पे, फिर क्लॉज पर, फिर सेंटेंस पर, ताकि हम पैराग्राफ तक पहुंच सके। वेरी गुड, आगे चलते हैं। आइए हम कुछ वर्ड्स को आपके सामने जोड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए वर्ड से मैंने कुछ वर्ड्स को जोड़ दिया। जब हम कुछ वर्ड्स को जोड़ते हैं तो याद रखिए, जरूरी नहीं है कि वो सेंटेंस बन जाए। मैंने लिखा एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, तो देखिए मेरे पास ये सेंटेंस नहीं कह सकता मैं इसको, क्योंकि सेंटेंस मींस अ कंप्लीट मीनिंग्स। एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, दिस दिस इज नॉट अ सेंटेंस। अगर मैंने कह दिया दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, इट्स गिविंग अस सम मीनिंग इन द क्लास। इन द क्लास, क्लास में मतलब क्या सर? मतलब आगे पीछे कोई बात समझ ही नहीं आ रही है। फिर मैंने कहा वाइल आई वॉज टीचिंग, जब मैं पढ़ा रहा था, जब मैं पढ़ा रहा था। अपना प्रॉपर नेम मेंशन किया करें क्लास के अंदर। मैंने 10 दफा आपको कहा है, जब आप किसी के पास जाते हैं तो अपना नेम मेंशन प्रॉपर करते हैं, लेकिन नहीं समझ आती बात, फिर आपको सेशन से बाहर कर देंगे तो फिर आप कहेंगे हमें क्यों निकाला। आई हैव advised you multiple times to join session with your proper name, and this session is for females only। तो अपना हस्बैंड का नाम हटाइए और अपना प्रॉपर नेम मेंशन करें। मिसेस फजल लिखें आप, या तो ओप्पो लिखा हुआ है आपने, ओप्पो अपना नाम प्रॉपर मेंशन करें। ठीक है, मेंशन योर प्रॉपर नेम। इन द क्लास एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग वाइल आई वॉज टीचिंग, जब मैं पढ़ा रहा था या जब मैं पढ़ा रही थी। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता। हाँ आगे बात करें सर, बात मुकम्मल ही नहीं हो रही है, अधूरी सी बात है, मैं इसको भी सेंटेंस नहीं कह सकता। दिस इज नॉट अ सेंटेंस, तो फिर मैं क्या कहूं? सर हसीब टीचर्स अस, सर हसीब हमें पढ़ाते हैं। ये बात मुकम्मल हो गई है, समझ आती है ये बात? हाँ भाई, ये बात समझ आ रही है, बिल्कुल आ रही है समझ। इज शी अलाइव, क्या वो जिंदा है? इज शी अलाइव?
बात समझ आ रही है, सेंट अधूरी बात नहीं है, बात क्या वो जिंदा है। कम हियर, इधर आइए भाई। बात जरूरी नहीं है कि आप 3 वर्ड्स लगाएं तो सेंटेंस बने और 2 वर्ड्स लगाएं तो सेंटेंस ना बने। सर ने आपको 2 वर्ड से सेंटेंस बनाकर दिखा दिया। कम हियर, कम हियर, इधर आइए। जब आप ये कहते हैं कम हियर, इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस, बात मुकम्मल हो रही है। तो आइए अब हम कुछ वर्ड्स को बकायदा जोड़ते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से फ्रेज बन रहे हैं, क्लॉज बन रहे हैं और सेंटेंस बन रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है फ्रेज। अ फ्रेज इज अ वर्ड or a phrase is a group of words which gives us some meaning. A phrase is a group of words that function as a single unit within a sentence. ये sentence का हिस्सा बन सकता है। आप इसको सेंटेंस का हिस्सा बना सकते हैं, लेकिन आप इसको सेंटेंस नहीं कह सकते। आप इसको सेंटेंस का हिस्सा बना दीजिए। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अस सम मीनिंग। आइए हम कुछ वर्ड्स को जोड़ते हैं। आपने शायद माजी में इस तरह के वर्ड्स को जोड़ा हो। एन ओल्ड बुक, अ रेड एप्पल, the noisy street, a delicious cake, a charming smile, a friendly neighbor, an adventurous journey, the beautiful garden, the beautiful beach, a peaceful movement। जब आप इस तरह की बात करते हैं, गौर से देखिएगा, तवज्जो से देखिएगा, जब आप इस तरह से कुछ वर्ड्स को जोड़ते हैं तो वो वर्ड्स बन जाते हैं फ्रेज। और फ्रेज के अंदर भी 2 टाइप्स हैं। ये कहलाता है नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज, आपने कुछ वर्ड्स को जोड़ा, उससे पहले आ लग रहा है, एन लग रहा है, दा लग रहा है, आपने पहचान लिया, सर दिस इज नाउन फ्रेज। कैसे पहचानोगे? शुरू में आर्टिकल्स आ रहे हैं, उसके बाद देखिए प्रेपोजिशनल फ्रेज। ऑन द टेबल। अब प्रेपोजिशंस क्या होते हैं शुरू में देख लो, पढ़ लो तवज्जो के साथ। दीज आर प्रेपोजिशंस एंड दे ऑल आर प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज होगा हमेशा स्टार्ट प्रेपोजिशन से, और उसके बाद आपको कोई आर्टिकल दिख रहा होगा। देखिए आपको आर्टिकल दिख रहा है, याद रखिएगा। अब आप कभी अभी आपकी एक एक्सरसाइज भी आएगी, आपका इस हफ्ते टेस्ट भी आएगा, इसी टॉपिक के ऊपर आपका टेस्ट भी होगा। मैं जो पढ़ाता हूँ उसके ऊपर मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ, और एक्सरसाइज के साथ आपको मिलता है एक टेस्ट। टेस्ट मैं हमेशा संडे को कंडक्ट करता हूँ, ठीक है? ऑनलाइन टेस्ट होता है आपका। अब आइए क्लॉज। व्हाट इज clause? A clause is a group of words that contains a subject and a verb. सबसे बड़ी निशानी मैं आपको बता रहा हूं, फ्रेज और क्लॉज में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है, फ्रेज डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। फ्रेज के अंदर आपको ना सब्जेक्ट मिलेगा, ना ही आपको वर्ब मिलेगा। लेकिन जब आप बात करते हैं क्लॉज की, तो क्लॉज के अंदर आपको सब्जेक्ट भी मिलता है, क्लॉज के अंदर आपको वर्ब भी मिलता है। और क्लॉज 2 तरह के होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। सर इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? एन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज अ कंप्लीट सेंटेंस। सर हसीब टीचर्स अस, आई राइट एन essay, she speaks in English, I drive a car। आपको ये सारे लग रहे होंगे ये सेंटेंसेस हैं। बेटा आप सेंटेंस इज इक्वल टू इंडिपेंडेंट क्लॉज। आप इंडिपेंडेंट क्लॉज को सेंटेंस भी कह सकते हैं। मेरी इस बात का रेफरेंस कल की क्लास में जुड़ा होगा, तो ये बात जरा तवज्जो से सुन लें, क्योंकि कल का जो लेक्चर होगा वो इसी बात से जुड़ा हुआ होगा। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? डिपेंडेंट क्लॉज में भी सब्जेक्ट और वर्ब मिल जाता है, बट डिपेंडेंट क्लॉज डज नॉट गिव यू कंप्लीट मीनिंग। डिपेंडेंट का मतलब नाम से पता चल रहा है मोहताज, और ये मोहताज किस पर है? इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर। आप देखिए बहुत सारे इंडिपेंडेंट क्लॉज आपकी जिंदगी में आ रहे हैं। इतने सारे इंडिपेंडेंट क्लॉज आपने एक साथ नहीं देखे होंगे। आपकी स्क्रीन को थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं ताकि आपकी आंखों को ज्यादा तकलीफ ना पहुंचे। When I was young, जब मैं जवान था। Because she was tired,
क्योंकि वो थकी हुई थी। अच्छा, अब आप सोच रहे सर इसकी उर्दू आप लिखवा दें। मैं आपको एक एक अभी के अभी आपको एक जो है वो डेमो दे रहा हूं, आप देखिएगा। आपके मोबाइल फोन के अंदर होना चाहिए बस कैमरा। अगर आपके मोबाइल फोन में कैमरा है, जैसे मेरे मोबाइल फोन में, अगर थोड़ा सा अच्छा मोबाइल फोन है तो उसमें 3 कैमरे होंगे, ठीक है ना। जरूरी नहीं है आईफोन ही हो, अब हर मोबाइल में 3 कैमरे आ रहे हैं। तो आपने उसकी एक तस्वीर लेनी है। अच्छा, तस्वीर लेने के बाद आपके 3 कैमरों के अंदर आपके पास, याद रखें 3 कैमरे होते हैं, उसमें एक होता है गूगल लेंस का कैमरा। आप उससे ट्रांसलेट करवा सकते हैं। आपने तस्वीर खींची और ट्रांसलेट हो जाए। मैंने देखे ये तस्वीर अभी आपके सामने जो स्क्रीन के ऊपर है, मैंने ये तस्वीर, बस एक लम्हे की बात थी, मैंने तस्वीर खींची। तस्वीर खींचने के बाद अब मैं यही फाइल आपके व्हाट्सएप के ऊपर सेंड कर रहा हूं। मुझे कितनी देर लगी, हार्डली अ मोमेंट, इतनी देर जितनी देर में आप एक तस्वीर खींचते हैं। अब आप जा रहे हैं अपने मोबाइल फोन के कैमरे पर, अपने मोबाइल व्हाट्सएप पे चले जाइए। व्हाट्सएप पे चेक कीजिए, आपके पास एक फाइल आ गई है। चेक करें, चेक करें, चेक करें, चेक करें। और मैंने नीचे लिंक भी फॉरवर्ड किया है, ट्रांसलेटेड विथ गूगल लेंस। अगर आपके मोबाइल फोन में एक कैमरा भी है, कोई मसला नहीं है। आप इसी तरह से एक तस्वीर खींचकर आप हर चीज की उर्दू कर सकते हैं, कोई मसले। अब हम पहले टीचर के पास जाते थे, सर अल्लाह का वास्ता इसकी उर्दू कर दें। अब भाई देखिए टेक्नोलॉजी आ गई है। आई हैव बीन टेलिंग वन थिंग इन माय ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन लर्निंग इज 10, 20, 30, 40, 50 times faster than physical education. Online earning is 10 times as compared to physical jobs. आप लोग अपने लैंग्वेज स्किल्स सीख लें, आप 10 गुना ज्यादा कमाएंगे एक टीचर की हैसियत से। हम 1 लाख रुपए कमाते थे भाई, 1 लाख ही कमाते थे। पूरे दिन काम करते थे, सुबह 9, 8 बजे कॉलेज पहुंचते थे और रात 10 बजे तक हमारी अकेडमीज में इधर उधर क्लासेस चलती थी। बीच में 1 घंटे खाने के लिए आते थे बस, जब टाइम मिलता था। आज भी सुबह 9 बजे से काम शुरू करते हैं, रात 11, 11:30 तक काम करते हैं। नाउ वी अर्न 10 times मोर एज कंपेयर टू फिजिकल जॉब्स। तो मैं आपको भी एडवाइस करूंगा कि भाई अपने लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करें और अपने हालात को बदलें। इंसान के हालात बदलते जब है वो जब खुद अपने आप को बदलना चाहता है। ठीक है, अब आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, उस अल्लाह का शुक्र अदा करें, अपने लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करें, 3 महीने प्रैक्टिस करें ताकि आप इस काबिल हो जाएं कि आप लैंग्वेज को बोल भी सकें, आप लैंग्वेज को पढ़ा भी सकें। 6 महीने बाद आप इस काबिल हो जाएंगे अगर आप मेरे साथ 6 महीने तक कनेक्टेड रहे। अब देखिए मैंने आपको जो फाइल भेजी है, जब मैं छोटा था, बिकॉज शी वॉज टायर्ड, क्योंकि वो थकी हुई थी। आफ्टर दे फिनिश डिनर, रात का खाना खत्म करने के बाद, अंटिल शी कम्स बैक, जब तक वो वापस ना आ जाए। सर आपने तो मसले हल कर दिया है। मतलब अब आपको कोई भी सेंटेंस परेशान करे, बस एक तस्वीर लेनी है आपको, और उसके बाद बस जिंदगी आसान। इवन इफ इट टेक्स ऑल नाइट, चाहे इसमें सारी रात लग जाए, विच एवर ऑप्शन दे चूज, वो जो भी ऑप्शन मुंतखब करें। वॉट आई नीड टू डू, मुझे क्या करने की जरूरत है ये मुझे मत बताओ, मुझे पता है। whoever wants to join, जो भी शामिल होना चाहता हो, however you look at it, ताहम आप इसे, आप चाहे इसे जैसे भी देखें। while I was cooking, जब मैं रात का खाना बना रही थी, since I lost my keys, जब से मेरी चाबियां खोई हैं, कहीं पर इसकी उर्दू कमजोर है। आफ्टर ही फिनिशेस हिज वर्क,
जब वो अपना होमवर्क मुकम्मल कर लेता है या कर लेगा, ठीक है। अगर कल बारिश होगी, इफ इट रेन्स टुमारो, अगर कल बारिश होगी, सिंस इट वॉज लेट, चूंकि देर हो चुकी थी, बिफोर द मूवी स्टार्ट्स, इससे पहले कि फिल्म शुरू हो जाए या फिल्म शुरू होने से पहले, अनलेस यू हरी अप, जब तक आप जल्दी नहीं करेंगे, वेन एवर ही कॉल्स, वो जब भी फोन करता है या जब भी फोन करेगा, whoever wins the game, जो भी खेल जीतता है, जो भी खेल जीतेगा, which book you prefer, आप कौन सी किताब पसंद करेंगे, मतलब जो भी आप बुक पसंद करें, which book you prefer, whatever he decides, वो जो भी फैसला करेगा। अच्छा देखो, अब तुम लोगों के जहन में आ रहा होगा कि विल लगा दें सर, हम इन वर्ड्स के बाद विल नहीं लगाते। विच एवर वे यू गो, जिस तरफ भी तुम जाओगे या जिस तरफ भी तुम जाओ, आफ्टर वी फिनिश आवर वर्क, हम अपना काम खत्म करने के बाद, व्हेन दे अराइव होम, जब वो घर पहुंचेंगे, बिफोर शी गोज टू बेड, इससे पहले कि वो सोने चली जाए, बिस्तर पर चली जाए, ऑल्दो ही ट्राइड हिज बेस्ट, हालांकि उसने बहुत मेहनत की थी, पूरी कोशिश की थी, व्हाइल आई वाज स्टडीइंग, जब मैं पढ़ रहा था, एज सुन एज ही अराइव्स, जैसे ही वो आएगा, प्रोवाइडेड दैट दे एग्री, बशर्त ये कि वो राजी हो जाए, मान जाए, व्हेन वेयर एवर शी गोज, जहां भी वो जाएगी और जहां भी वो जाती है, whose car is parked outside, जिनकी गाड़ी बाहर खड़ी है, मैं देख लूंगा भाई, whose turn it is, जिसकी बारी है, whenever they arrive, जब भी वो पहुंचेंगे, whether they come or not, वो आए या ना आए, कहते ना, चाहे तुम आओ या ना आओ, मैं तो केक काट लूंगा। ऑल्दो इट सीम्ड इम्पॉसिबल, अगरचे ये नामुमकिन लग रहा था, भले से ये नामुमकिन लग रहा था, until the sun sets, सूरज गुरूब होने तक, जब तक सूरज नहीं डूब जाएगा, ऑल्दो इट वॉज कोल्ड आउटसाइड, हालांकि बाहर बहुत सर्दी थी भाई, आपने देखा। अब आपकी उर्दू का कोई मसला नहीं रहा, मैंने खुद भी आपको बता दी, और जो वहां पर लिखी थी उससे क्रॉस चेक करके भी आपको बता दिया, कहीं कहीं वो स्लिप ऑफ टंग करता है, उसकी कहीं कहीं पर स्लिपिंग्स हैं, तो लिखा हुआ होता है, क्या लिखा हुआ होता है नीचे, चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक, ये भी आपका एआई है। एआई, आप कुछ भी उर्दू में लिखकर इंग्लिश कर सकते हैं, इंग्लिश में लिखकर उर्दू, पंजाबी, फारसी, चाइनीज, अरबिक, जो जिस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। अब डिपेंडेंट क्लॉज आपको समझ आ रहे हैं, अधूरी बात, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, लेकिन बात मुकम्मल नहीं। ठीक है बेटा, चले आगे चलते हैं, फिर एक एक्सरसाइज आपके साथ सॉल्व करेंगे। सेंटेंस, पुरानी बातों को थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे लेके चलते हैं, ये पुरानी बातें हैं। हमारे पास मुख्तलिफ तरह के सेंटेंसेस होते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस इकरारिया जुमले, नेगेटिव सेंटेंस इनकारिया जुमले। व्हेन यू मेक अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, दे ऑलवेज एंड ऑन फुल स्टॉप। सेंटेंस की सबसे बड़ी निशानी यही है कि दे एंड ऑन फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है बेटा, उसके बाद आपकी जिंदगी में आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको आप लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस कह देते हैं, क्वेश्चन कह देते हैं। हमारे पास दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, यस एंड नो क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन विद WH वर्ड्स। अगर मैं यस और नो क्वेश्चन की बात करता हूं तो इसमें हमेशा ये वर्ब से स्टार्ट होते हैं। डू यू स्पीक इंग्लिश? डू यू अंडरस्टैंड माई लेक्चर? आर यू गुड एट इंग्लिश? इज शी योर फ्रेंड? आप या तो यस बोलेंगे या फिर नो बोलेंगे। व्हाट डू यू वांट? चाहती क्या हो तुम? व्हाई आर यू क्राइंग? रो क्यों रही हो भाई? हाउ मच मनी डू यू अर्न? तो आप कितना पैसा कमाते हैं? हाउ मच, ये पूछे फेसबुक मुझसे कितना पैसा लेता है? हाउ मच मनी डज फेसबुक चार्ज? ठीक है बेटा, ये दीज आर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर को, हाउ टू आस्क क्वेश्चंस, आप सवाल कैसे पूछते हैं, क्योंकि अगर आपको सवाल पूछना आ गया
you will never sit quiet and you will never let anybody sit quiet. अगर आपको सवाल पूछना आ गया, if you learn how to question, ना आप खामोश बैठेंगे ना आप किसी को खामोश बैठने देंगे, ठीक है ना? इम्पेरेटिव सेंटेंस, क्लोज द विंडो प्लीज, मेहरबानी करके जरा ये खिड़की तो बंद कर दीजिए। चलो ये जाने से पहले ना कचरा बाहर फेंकती हुई जाना। टेक आउट द ट्रैश बिफोर यू लीव। अरे यार मेहनत करें बेटा अपने एग्जाम्स के लिए, स्टडी हार्ड फॉर योर एग्जाम्स। व्हाई आर यू नॉट गेटिंग माय वर्ड्स? जी सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी। बी काइंड टू अदर्स, एडवाइस समझ लें, रिक्वेस्ट समझ लें। डोंट फॉरगेट टू कॉल योर पेरेंट्स, अपने अम्मा अब्बा को फोन करना नहीं बोलना। नेगेटिव इंपेरेटिव याद आ रहे होंगे बचपन के जुमले। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऐसे सेंटेंसेस हमेशा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पर ही एंड हो रहे थे। हाय अल्लाह, अलास, अलास, I have failed. Hurrah, we have won the match. Wow, that performance was incredible. What a small world we live in. Sudden expressions. Optative sentence. Duaiya jumle. May you live long. Happy birthday to you. Happy birthday to you. May you live long. May you have many more. वो सारे जुमले दुआई हैं। May you have a prosperous year ahead. ईद वाले दिन आपके पास मैसेजेस आते हैं, May Allah shower His blessing on you and your family. है भाई, अल्लाह आपके घर वालों के ऊपर रहमत की बारिश कर दे, आमीन। May all your dreams come true. अल्लाह करे आपके सारे ख्वाब सच हो जाए। May you start speaking English. अल्लाह करे आप लोग अंग्रेजी बोलना शुरू कर दें। I'll be very much happy. ठीक है, चले ऑपरेटिव सेंटेंस आ जाए। एक एक्सरसाइज करते हैं। लोग कहते हैं आप, मेरी एक आदत थी जब मैं लैंग्वेज, फिजिकल लैंग्वेज टीचिंग करता था, तो वहां पे भी मेरा हर लेक्चर में एक्सरसाइज जरूर होती थी। एक्सरसाइज के बगैर मैं आगे नहीं चलता था जब तक मुझे वेरिफिकेशन ना हो जाए कि हाँ भाई मेरी आवाम ने चीजों को अंडरस्टैंड कर लिया। तो आज भी मेरे लेक्चर्स ऐसे ही डिजाइन हुए हुए कि मैं आपसे 50 मिनट की बात करूंगा तो मेरी 10 मिनट की आपसे एक्सरसाइज जरूर सॉल्व करवाऊंगा, चाहे ओरल चाहे रिटन। आ जाइए, अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। चैट्स में आ जाए आप लोग और 1 डॉट करके लिखेंगे, 1 डॉट करके आप लोग जवाब लिखेंगे। जवाब को आप शॉर्टकट स्टाइल में लिख सकते हैं। देखें, आप 1 डॉट करके लिखें, वालेकुम अस्सलाम, देर हो गई बेटा आपको आने में। दे आर गोइंग ऑन अ वेकेशन। मैंने आपकी चैट्स ऑन कर दी, आप चैट्स में लिखेंगे तो देखिए मैं यहाँ पर, वेरी गुड अमीना, यू हैव गिवन अ वेरी क्विक आंसर, वेरी गुड। मैं देखें आपको एक क्वेश्चन मार्क बनाकर भेज देता हूँ, तो आप सबको यहाँ पर लिखना है, राइट, वेरी गुड। 1 डॉट करके लिखेंगे तो मुझे पता चलेगा ये किसका जवाब है। 1 डॉट करके लिखें, सर इट्स अ सेंटेंस, इट इज अ सेंटेंस, सेंटेंस। 1 डॉट करके लिखें, 1 डॉट, इट्स अ सेंटेंस। Yes, you are absolutely right. 1 डॉट, अब 2 डॉट करके लिखे। नंबर 2 पे गया, आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं एनपी नाउन फ्रेज, पीपी prepositional फ्रेज, डीसी डिपेंडेंट क्लॉज और एस सेंटेंस। आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं। तैयबा ने लिखा, वेरी गुड तैयबा, यू गिव द राइट एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। बाकी लोगों का जवाब आ रहा है नहीं। आयशा सोच लें, सोच लें, इसमें सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, सोच लें। अमीना देखिए, इससे मुझे पता चलता है हमारी कितनी आवाम के जवाब सही आ रहे हैं। मेरी क्लास का आईक्यू लेवल यहीं से मुझे पता चलता है। अच्छा, ये आप 1 2 लिख रहे होंगे ना, तो खुद ब खुद वो नंबरिंग चेंज हो रही होगी, तो डबल डॉट डालें, 2 डॉट्स डाल दें, 2 डॉट डॉट, तो वो चेंज नहीं करेगा। 2 डॉट्स डाल दें। अगर 2 डिपेंडेंट क्लॉज है, अगर 2 डिपेंडेंट क्लॉज है तो मुझे बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। दे आर गोइंग ऑन अ वेकेशन। नताशा, इतना लंबा बेटा लिखने की जरूरत है, सिर्फ सेंटेंस लिख दें, 1 डॉट सेंटेंस। फिर उसके बाद है द क्यूरियस लिटिल किटन, 2 डॉट करके डायरेक्ट जवाब लिख दें, एनपी, पीपी और डीसी। नंबर 2 है नाउन फ्रेज।
नाउन फ्रेज। आप बेटा 8 बजे ज्वाइन कीजिएगा, अगर आपने देर से ज्वाइन किया है तो मैं अभी आपको, रिवर्स गियर नहीं है मेरी गाड़ी में, सिर्फ गाड़ी मेरी आगे चलती है। रिवर्स गियर दोबारा सुनने के लिए बेटा 8 बजे ज्वाइन कीजिएगा। अंडर द ब्रिज, अंडर द ब्रिज, अंडर द ब्रिज, अंडर द ब्रिज, अंडर अंडर अंडर, आपके पास क्या आ रहा है ये? अंडर क्या आ रहा है? ये प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद आर्टिकल है, वर्ब तो है नहीं इसमें, ना सब्जेक्ट है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज कैसे हो गया, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज कैसे हो गया, समझ नहीं आ रहा। अंडर द ब्रिज इट्स अ प्रेपोजिशनल फ्रेज, पीपी। प्रेपोजिशनल क्लॉज ये नई चीज आ गई है हमारी मार्केट में, प्रेपोजिशनल क्लॉज नई चीज आई है बेटा। प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है, पीपी लिखे। व्हेन द सन सेट्स, जब सूरज डूबेगा, बताइए, 4 डॉट करके लिखे। तैयबा, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी गुड। 4 डॉट करके लिखे अमीना। 4 नहीं कैसे, अरे एरज, वेरी गुड, वेरी गुड। डीसी लिख सकते हैं आप शॉर्टकट में, वेरी गुड साइमा, वेरी गुड जवेरिया, वेरी गुड। समझ आ रही है बात, बात समझ आ रही है, वेरी गुड। अ डिलिशियस चॉकलेट केक, अ डिलिशियस चॉकलेट केक, अ डिलिशियस चॉकलेट केक। आ 5, पहले 5 है, अच्छा। द स्काई इज क्लियर एंड ब्लू, द स्काई इज क्लियर एंड ब्लू। 5 डॉट करके लिखेंगे तो मुझे समझ आता है जवाब किसका है। ओके नफीसा, वेरी गुड इकरा, वेरी गुड अमीना, आयशा वेरी गुड, जवेरिया वेरी गुड, हिफ्जा वेरी गुड। कैसी बातें कर रही हैं तायरा। अच्छा हाँ सही है, आपका जवाब भी सही है, मुझे शॉर्ट फॉर्म्स को समझने में तकलीफ हुई थी। दैट्स वेरी गुड। इंडिपेंडेंट क्लॉज 5 आपका सेंटेंस है, दैट स्काई इज क्लियर एंड ब्लू। आखिर में फुल स्टॉप देख लिया करो, फुल स्टॉप है तो कंफर्म आपका वही है। अ डिलिशियस चॉकलेट केक, 6, 6 बताइएगा, 6 क्या है? अ डिलिशियस चॉकलेट केक, अ डिलिशियस चॉकलेट केक। A noun phrase, noun phrase. Yes, you are absolutely right. Noun phrase, noun phrase. That's very good. Across the street, across the street, across the street. Prepositional phrase, very good. Prepositional phrase. Prepositional phrase. If you study hard, if you study hard, if you study hard, if you study hard, अगर आप, अधूरी सी बात है, इफ यू स्टडी हार्ड, अगर आप मेहनत करेंगे। डिपेंडेंट क्लॉज, वेरी गुड, एक्सलेंट, समझ आ गई ये बात। द टॉल ओक ट्री, इसी के ऊपर टेस्ट भी लूंगा, जो एक्सरसाइज बनाता हूँ उसी तरह का टेस्ट भी बनाता हूँ, बस वो ऑनलाइन होगा, आपको सेलेक्ट करना होगा सेंटेंस, डिपेंडेंट क्लॉज, प्रेपोजिशनल फ्रेज, नाउन फ्रेज। इसमें पूरे मार्क्स आने चाहिए 20 आउट ऑफ 20, ठीक है ना, इसमें किसी बच्चे के मार्क्स ना कटे। संडे को होता है टेस्ट। द टॉल ओक ट्री, अगर आप स्टेप बाय स्टेप सर को इसी तरह से फॉलो करेंगे तो आपके लैंग्वेज स्किल्स 3 महीने के अंदर बेहतर हो जाते हैं। मैं आपकी लैंग्वेज ग्रामर को इम्प्रूव करूंगा। अभी आप जाएंगे थोड़ी देर में डिस्कशन क्लास के अंदर। द टॉल ओक ट्री हो गया आपका, द टॉल ओक ट्री, द टॉल ओक ट्री, इट्स अ नाउन फ्रेज, वेरी गुड। इनसाइड द हाउस, इनसाइड द हाउस, जब मैं बात करता हूं इनसाइड द हाउस, इट्स अ prepositional phrase. Yes, you are absolutely right, it's a prepositional phrase. And the last one, because she was tired, क्योंकि वो थकी हुई थी, because she was tired, क्योंकि वो थकी हुई थी, because she was tired, क्योंकि वो थकी हुई थी, it's dependent clause. You are absolutely right.
डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है बेटा, ये एक्सरसाइज आपके साथ जारी है, ये नोट्स आपके व्हाट्सएप पे रिसीव हो जाएंगे, आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लें। जब प्रिंट आउट निकलवाएं तो कोशिश कीजिएगा वन साइड प्रिंट आउट निकलवाएं। वन साइड क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बैक साइड पे आपको कभी कभार नोट्स लिखने पड़ जाते हैं, तो वो बैक साइड आपके पास हो लिखने के लिए। ठीक है, वो आप उसमें लिखिएगा। इस एक्सरसाइज को पहले सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने के बाद अपने आंसर्स को क्रॉस चेक कीजिएगा। ठीक है, अपने आंसर्स को क्रॉस चेक लाजमी कीजिएगा। सर कल क्या पढ़ाएंगे? कल अगर आप मुझे दोपहर में ज्वाइन करेंगे या सुबह में ज्वाइन करेंगे या रात में, तो मेरा टॉपिक होगा वेरिएशन ऑफ अ सेंटेंस। वेरिएशन ऑफ अ सेंटेंस, ये टॉपिक आइल्स के पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको 25% मार्क्स इसी चीज के मिलते हैं। ठीक है, तो आने वाले जिंदगी में अगर आपको आइल्स का एग्जाम देना है तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपकी डिस्कशन टीचर ने आपको ज्वाइन कर लिया है। आई एम साइनिंग ऑफ। ओवर टू मिस तबस्सुम। मिस तबस्सुम, आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Thank you so much, sir. बच्चे आज बिल्कुल नए नए बच्चे हैं, इनके साथ जरा नरमी से पेश आइएगा, आसान सा टॉपिक दीजिएगा ताकि ये बात कर सके, ये बोल सके। ठीक है ना? Yes, sir. For sure. थैंक यू I'll सो follow your instructions. Thank you very much. As you always, thank you very much.